Hello students of class 6th. Today we are going to study English first. English first, chapter number 3. The Song of Songs, page number 23. The Song of Songs. In this what we will study? One day when Tansin was performing his music, the Emperor Akbar was very pleased with his song. He told Tansin that his music was like a divine virtue. But Tansin told him about his guru and took him there where Akbar came to know the meaning of divine harmony. जब एक बार तानसेन अपनी म्यूज़िक बजा रहा था तो एम्परर अकबर उसका गाना सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन को कहा कि तुम्हारी म्यूज़िक डिवाइन वर्च्यू है, मतलब उसमें इंसान बिल्कुल खो जाता है। तब तानसेन ने उनको अपने गुरु के बारे में बताया और उनको वहाँ ले कर गए जहाँ पर अकबर को सही मायनों में पता चला कि डिवाइन हार्मनी होती क्या है। स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Raj Darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. Tansin bowed in silent gratitude. I think you have the most wonderful voice in the world, said Akbar. But I don't, Shahanshah, said Tansin with a smile. There is someone who sings far better than I do. Really? Cried the disbelieving Akbar. Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? Tansin shook his head. I am afraid he will not come, sir. What? Not even if he hears that the emperor himself summoned him? No, not even then. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. धीरे से आराम से थका हुआ एक म्यूजिशियन अपना तानपुरा कारपेट पर रखता है। The executive strains of Raj Darbari still vibrated. The very beautiful sound, मतलब बहुत ही अच्छी आवाज़ वहाँ पर अब होने वाली थी और राज दरबार में, और ये आवाज़ उसमें गूंजने वाली थी। एम्परर अकबर अब देखते हैं और उनको मतलब बहुत खुशी होती है और वो उससे तानसेन से कहते हैं, सुपर, मैं तुम्हें डेली सुनता हूँ लेकिन तब भी मेरा मन नहीं भरता। तो तानसेन अपना सर झुका लेता है और फिर अकबर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो उसने कहा कि नहीं शहंशाह, कोई और भी है जो मुझसे बहुत 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 अच्छा गाता है। रियली? तो तानसेन ने कहा, क्या सच में? तो तुम क्या अरेंज कर सकते हो कि वो मेरे दरबार में आके गाना गाए? तो तानसेन ने अपना सर हिला दिया कि नहीं, आई एम अफ्रीड ही विल नॉट कम, मैं डरता हूँ कि वो नहीं आएंगे सर। तो फिर अकबर ने कहा, क्या तभी नहीं आएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि एम्परर ने खुद उन्हें बुलाया है? तो तानसेन ने कहा कि नहीं, तभी वो नहीं आएंगे। दिस रिप्लाई would have enraged any other emperor, but Akbar was different. Very well, Ustad ji, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? Yes, sir, provided you do not come as the emperor of Hindustan. I shall go as a humble lover of music. Sant Haridas was the man Tansen had spoken of. He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of a hermit. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. When they asked him to sing, he smiled but said firmly,
I am long past the age for singing. Even his favorite pupil could not persuade him to change his mind. But Tansen knew how to get round him. He offered to sing before his guru and he made a deliberate mistake. That's not the right note, Tansen, cried his teacher, amazed. What has happened to you? Tansen did not seem to understand his teacher and he made the same mistake again. Exasperated, Sant Haridas took the Tanpura from Tansen's hand and sang the right note. Then he went on to the next and the next. The melody of his voice spread across the forest like the first glimmer of dawn or the fragrance of jasmine. Both Akbar and Tansen listened to him as if they were hypnotized, and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. He had not known that music could be like this. He had certainly never heard anything like it before. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, why can't you sing like him, Ustad ji? जब अकबर ने तानसेन से कहा उसको बुलाने के लिए अपने गुरु को, जो तानसेन से भी अच्छा गाते थे, और तानसेन ने फिर मना कर दिया, तो इस वजह से कोई दूसरा और राजा होता तो शायद वो नाराज़ हो जाता, लेकिन अकबर थोड़ा सा डिफरेंट थे और उन्होंने कहा वेरी वेल उस्ताद जी। और तब तानसेन आधा मतलब डरा हुआ था। इफ़ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आ सकते तो मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ, क्या आप मुझे लेके चलेंगे? तो उसने कहा यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम, लेकिन आप एज अ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान मत आइएगा। तो उसने, राजा ने कहा कि आई शेल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का लवर बन के जाऊँगा। और तानसेन के टीचर कौन थे? संत हरिदास। संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। तानसेन ने जिसके बारे में बात की थी वो संत हरिदास थे। इन्होंने ही तानसेन को म्यूज़िक सिखाया था। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूज़िक टीचर एंड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाइफ ऑफ अ हर्मिट। ऑस्टियर लाइफ मतलब सारी सुख सुविधा को छोड़ के, मतलब सारे ऐशो आराम को छोड़कर ये अपनी लाइफ एक हर्मिट की तरह, एक साधु की तरह जंगल में बिताते थे। When तानसेन एंड द एम्परर रीच्ड हिज हट, जब तानसेन और राजा अकबर एम्परर उसके हट तक पहुँचे तो वो अपने डेली के कामों में बिजी थे। और जब उन लोगों ने उनको गाने को बोला तो उन्होंने हंसते हुए बहुत ही आराम से कहा कि आई एम लॉन्ग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग, मतलब मेरे गाने की उम्र अब नहीं रही। और उनको कोई भी मना नहीं सकता था गाने के लिए, यहाँ तक कि उनका फेवरेट बच्चा भी नहीं। लेकिन तानसेन को पता था कि उसे क्या करना है। तानसेन ने अपने गुरु के सामने गाना गाना चाहा और उसने मिस्टेक कर दी, यानी उसने जानबूझकर तानसेन ने मिस्टेक कर दी। तो फिर उसके गुरु ने कहा, मीन संत हरिदास ने कहा, दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, तानसेन ये सही नोट नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन तब भी तानसेन को समझ में नहीं आ रहा था और वो फिर से वापस वही मिस्टेक करे जा रहा था अपने गाने में। और इससे मतलब गुस्सा होकर संत हरिदास ने उससे तानपुरा ले लिया और सही नोट गाने लगे, यानी सही गाना गाने लगे। और फिर वो गाते रहे। उनकी खूबसूरत आवाज़ जंगल में चारों तरफ फैल गई, जैसे लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन, जैसे कि फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन, यानी जब सुबह की धूप पड़ती है एक ही साथ सब पर, या फिर जैस्मिन की खुशबू जैसे चारों तरफ फैलती है, वैसे ही उनकी आवाज़ भी चारों तरफ फैल गई। बोथ अकबर और तानसेन, दोनों अकबर और तानसेन बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गए थे। मतलब वो इतना अच्छा गा रहे थे कि उनके गाने को सुनकर वो लोग बिल्कुल
उसमें डूब चुके थे, उनको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब अकबर ने यानी एम्परर ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि तानसेन ने सच में सही बोला था। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूज़िक कुड बी लाइक दिस। एम्परर को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनको म्यूज़िक का मतलब ये निकल कर भी आ सकता है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। एज दे वॉक बैक, फिर तानसेन और एम्परर जब जाने लगे वापस, तो एम्परर ने यानी अकबर, राजा अकबर ने उनसे पूछा कि तुम उस्ताद जी के जैसे क्यों नहीं गा सकते हो? तो तानसेन ने हंसते हुए बोला कि शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज द किंग ऑफ किंग्स. His music springs from the depths of his soul, free and unasked for. How can my music hope to reach those heights? तब तानसेन ने हंसते हुए कहा कि शहंशाह, मैं तो आपकी परमिशन से गाता हूँ, वो परमिशन जो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान मुझे देते हैं, लेकिन गुरुजी तो राजाओं के लिए गाते हैं। उनकी म्यूज़िक अंदर से आती है, दिल से आती है, फ्री होती है, और उनकी म्यूज़िक को मतलब कोई उनसे बोल नहीं सकता है, उनका जब मन करता है वो तब गाते हैं। तो फिर मेरी म्यूज़िक, मेरी आवाज़, मेरा गाना उस ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है? ओके, इन दिस वे your chapter is complete, the Song of Songs. This was the story of about तानसेन and Emperor Akbar. कैसे एम्परर अकबर को म्यूजिक के बारे में पता चला। ओके, once again you all read the story also. Next exercise we will do in our next video, and this story is written by Swapna Datta. Okay.